So, hi everyone. So, in this video, I am just going to brief you about the various courses that our Cadmantra Institute is offering you. So, today we are just going to talk about few modules of our civil and architecture designing courses. So, though we know that there are so many different verticals that is open for the people to take up their career. As we see, architectural design, structural design, building design, interior design, electrical design. These are all different divisions, different sectors where people can develop their career. So we'll talk about them in detail one by one. So first of all, let's know about a brief about our company. So as we know that CAD Mantra is the first center in Lucknow who is offering these career oriented courses for all the engineering students. Non-engineering students, professionals are also doing to upgrade their skills. So this is the skill development company. So where we are just having a kind of a all the professional courses in the designing sector. So what is unique about CAD Mantra? First is our experience. Second is our quality education, because this 22 years of experience is what like it has made us a leader in this training sector in the designing. So we are not only training the students, but apart from that we are also a training partner of the corporates. So we have got a very good connection with the good corporates like your UP Nirman Nigam, Awas Vikas. We have done the training in the MES also. We have done the training in the this Gammon India. We have provided training for the Lucknow Metro project managers also. We have done the training in the PWD as well. So there are lot many corporates where we have provided the training. So our trainers are not just going to teach you the concepts. Along with that concepts, we also give you the practical application, how you are going to use them in the industries, right? So this is what makes us the unique. So we are going to give you this training program with all that practical approach, plus you will be also getting the chances to develop your project portfolio. I'll just show you what kind of a portfolio also our student makes once they complete this training program. So as we know, we offer this training from for the technical students. Technical students means the people from this engineering background, engineering in any stream. We do offer the courses for the non-technical people as well, like the people who are from after 12 plus 12th, or maybe they're just pursuing any of the graduation courses, MBAs, housewives. That is what is our target market is. So those people also can join some of the training programs which are very well suitable for them, right? So we'll talk about both, like what are the courses which cannot be offered to the non-technical people, that also we'll discuss. So today I am just going to focus on first area that is going to be suitable for everyone. Means these courses can be joined by the technical people also, and even the non-technical housewives also. So the most fast moving course that we offer is in the line of civil, architectural and interior designing. So this is the most promising career also in Lucknow, because there are so many business houses, so many companies who are absorbing our students after completion of their courses. Right. So this is what like we'll talk about today, what kind of courses we offer and how you have to explain these courses to the participants also. So as we know that in the civil, architectural, interior designing courses, the flow is that how you have to start the thing. Have you ever seen the shopping malls or the big buildings, skyscrapers, all these kinds of good hotels? आप अगर लखनऊ में भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने शहीद पथ देखा होगा, आपने पलासियो मॉल देखा हुआ है, you have seen this UP पुलिस भवन, you have seen so many kind of a big apartments that are being constructed. तो उसके पीछे जो वर्क होता है, how the thing starts, that is what like first of all we are going to talk about. So mainly when we say that we have these buildings,
कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, कोई भी आप ड्राइंग्स बना, कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है उसकी डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, वो कैसे किस सॉफ्टवेयर पे होती है, क्योंकि जस्ट आपने देखा होगा कि कोई भी आपके माइंड में आइडिया आया तो आपने, जैसे आपके पास एक लैंड है, इफ यू फील दैट ओके हमारे पास में एक 40x60 का प्लॉट है, उस पे आपको फॉर एग्जाम्पल अपना एक ऑफिस बनाना है या आपको अपना एक रेजिडेंस डेवलप करना है, तो उस लैंड के ऊपर आप किस तरह से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लान करोगे। तो एक होता है कि जस्ट आपने रफ पेपर पे स्केच बना दिया कि मेरी नीड जो है वो 3 बेडरूम की है, 2 बेडरूम की है, 2 फ्लोर्स की है। तो आपने ब्लूप्रिंट्स भी देखे होंगे, जो नक्शे जिसको हम बोलते हैं, इजंट इट? दैट इज व्हाट वी आर मेकिंग यूज ऑफ दीज सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल्स। So digital drawing is what like we are talking about here. That is what we do it on the AutoCAD. So AutoCAD is the 2D drafting software which is just going to help us in designing, in developing those plans. जो भी आपके बिल्डिंग्स के प्लान्स हैं, अब प्लान्स क्या होते हैं, जिससे मैं भी आपको बताती हूँ प्लान्स क्या होते हैं। अब जैसे कि ये एक हमारा छोटा सा प्लान है, 2D ड्राइंग, कि हमारे क्या डायमेंशंस के बेडरूम हैं, किस डायमेंशन की किचन रहेगी, आपका डाइनिंग हॉल कितना रहेगा, ये सारी चीजें आप इस प्लान पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से जैसे आपके जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे जो आपकी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे एक ये होटल का प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको एक स्टूडेंट का ही वर्क दिखा रही हूँ कि किस तरह से उसका जो फ्रंट एलिवेशन है ये ऑटोकैड पे ही बना है। तो जस्ट वो एक आप थोड़ा सा आइडिया क्लाइंट को दे रहे हो कि हमारा जो ये होटल है उसका किस तरह का फ्रंट व्यू रहेगा, एलिवेशन क्या रहेगा, ये उसका प्लान है। प्लान मीन्स टॉप व्यू, किस तरह से आप उसका फ्लोर प्लान बना करके दे रहे हो कि आपका जो डायमेंशन है उसके हिसाब से हमारे क्या लेआउट रहेगा, वो आपने ऑटोकैड पे बनाया, इजंट इट? उसके बाद आप एक उसका अलग अलग व्यूज प्लान करते हो ऑटोकैड पे। व्यूज मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किस तरह का लुक आपका आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यूज। आइसोमेट्रिक व्यूज हो गए, सेक्शनल व्यूज हो गए, आपके साइड व्यूज हो गए, एलिवेशंस हो गए, ये सारे व्यूज जो है वो हम ऑटोकैड पे क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसको जो है रफ आइडिया एक तरह से कस्टमर को भी मिल जाएगा व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी आर ट्राइंग टू डेवलप। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं जो हम इस पे ऑटोकैड पे प्लान कर सकते हैं। उसके जो सेक्शंस होते हैं, या आपको जो एक सेक्शन कट करके दिखाना है क्या हमारा उसका मटेरियल है, वो सारी चीजें आप इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे इजीली कर सकते हैं। हम्म। तो जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है ये आपका प्लान्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव्स, ये सभी ड्राइंग्स बना सकता है। इवन ऑटोकैड पे 3D व्यूज भी बनते हैं, बट हमारे पास 3D सॉफ्टवेयर और बेटर अवेलेबल है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑटोकैड मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को 2D व्यूज के लिए। आप आपका 2D ड्राइंग्स, 2D लेआउट बना सकते हो, ताकि एक शुरुआत जो होती है वो हमेशा एक आपके 2D ड्राइंग से ही होती है। जो भी आपका एक लैंड है, अगर हम सिविल ड्राइंग्स की बात करें, क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो आपका कोई इंजन की डिजाइनिंग हो, आपके कोई कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है, इट कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो डिजिटल टूल की हेल्प से। एंड इसका जो बेस्ट बेनिफिट है, एक्यूरेसी, स्पीड। आपको पहले अगर आपने देखा होगा जो मैनुअल ड्राइंग्स बनती थी उसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहती थी, एंड इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग। ऑल्सो यू कैन हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी आपके करेक्शंस हो रहे हैं तो वो हमारे पास रिवाइज प्लान्स आ जाते हैं, एंड यू कैन इजीली ट्रांसफर दोज ड्राइंग्स फॉर अवर वर्किंग पार्ट ऑल्सो। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स को जब वर्किंग करना होगा, दैट इज हाउ दे कैन ऑलवेज
डू इट यूजिंग दिस ऑटोकैड। सो ये जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, टेरेस का प्लान हो गया, एलिवेशन ड्राइंग हो गई, ये भी एक एलिवेशन है आपका। तो ये सब चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। अब ऑटोकैड इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, तो वो आपके मैकेनिकल के प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल के कंपोनेंट्स डिजाइन करेंगे। उसका पूरा जो आपका बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो डिजाइनिंग होती है, दैट दे विल बी डूइंग इट। चाहे वो आपका कोई कंपोनेंट व्हीकल का हो सकता है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट जो आप इस पे डिजाइन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी यूज करते हैं अपने सर्किट्स डिजाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल प्लान बनाने के लिए। वो सारी चीजें भी जो इंजीनियर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल वाले स्ट्रीम्स के लोग भी इस सॉफ्टवेयर को करते हैं। तो ऑटोकैड एक तरह से ड्राफ्टिंग के लिए एक यूनिवर्सल टूल, जिसको आप बोल सकते हो कि डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है जो सभी स्ट्रीम्स में यूज होता है फॉर मेकिंग अप देयर ड्राइंग्स। अब जैसे ये भी हमारा एक ऑटोकैड का 2D प्लान है। अब मैंने आपको एक पूरा ये प्लान दिखाया बेसमेंट का, हॉस्पिटल बिल्डिंग का, हमारा ये फ्लोर वाइज प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का है ना, फर्स्ट फ्लोर का। ये मैं आपको जस्ट एक 2D प्लान दिखा रही हूँ किस तरह से हमारा वर्क चल रहा है। और एक मैं अगर आपको शो करूँ इसका पूरा फाइनल लुक, ये अब आपको इस वाले व्यू से ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरह का मेरा एलिवेशन या किस तरह का मेरा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट दिखेगा। या 2D ड्राइंग से जस्ट आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपके लेआउट के बारे में कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे जो कस्टमर है, आपको भी पता है कि आप कहीं भी जा रहे हो या आप अपना खुद का प्रोजेक्ट कराना चाह रहे हो, यू वुड लाइक टू सी कि एक फाइनल प्रेजेंटेशन, एक फाइनल लुक मुझे दिख जाए कि मुझे किस तरह का बनने के बाद मिलेगा। That is what like we make use of these 3D softwares. So, अब जब हम बात करेंगे आपको कि ऑटोकैड तो चलो ठीक है, आपने लेआउट्स प्लान सब बना दिए। अब आपको अगर क्लाइंट को पूरा डिटेल्स के साथ देना है, पूरे मटेरियल्स के साथ शो करना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रेविट सॉफ्टवेयर। रेविट इज अ 3D modeling software which works on the building information modeling, जिसको हम बोलते हैं बिम। बिम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, विच इज नथिंग बट जहाँ पे आपकी बिल्डिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी रिलेटेड, वो सारी डिटेल, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सेंट्रली स्टोर्ड रहेंगे। दैट सिंपली मीन्स कि आपने अगर किसी भी बिल्डिंग की आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बनाई, आर्किटेक्चर से मतलब जो मैंने आपको अभी प्लान्स वगैरह दिखाए थे, अब जब आप इसी बिल्डिंग की 3D ड्राइंग्स पे काम करोगे, इसी बिल्डिंग की जब आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे काम करोगे, इसी बिल्डिंग पे जब आप एयर कंडीशनिंग की डक्ट्स पे काम करोगे, हो सकता है उन डिजाइनिंग पे काम करने के बेसिस पे आपको कुछ आपके चेंज करना पड़े लेआउट्स में। तो जहाँ पे हम लोग जब वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने कुछ भी चेंज किया इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एयर कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या प्लम्बिंग ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारा आपका इंटर रिलेटेड होता है। तो वो सेंट्रली डॉक्यूमेंट आपका पूरा अपडेट करेगा जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं, चाहे वो आपके आर्किटेक्चर पार्ट में हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, प्लम्बिंग में हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में हो रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस बिम कॉन्सेप्ट।
तो बिम पे जब हम बात कर रहे हैं तो रिविट सॉफ्टवेयर जो है इट इज अ based on this BIM technique only, BIM technology, BIM approach only. So we have got first where we can work on the architecture part of our building. जहाँ पे आर्किटेक्चर से मतलब है उसके लुक्स पे, एक्सटीरियर इंटीरियर, हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक, वो आप रिविट आर्किटेक्चर पे करेंगे। इसके जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे हम ये सब चीजें देखेंगे, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी, that we'll discuss later. Right now you just want to have a final look of your building. So Revit is a 3D modeling software which is just going to give you the final look by using all your materials, walls, stairs, roofs, everything you can have, and you can have a final look of your complete project. अब जैसे ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जो रेविट पे डिजाइंड है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एवरीथिंग इज देयर, ऑल द मटेरियल्स, लाइक विंडोज हैव गॉट द ग्लास। अब डोर्स पे आपका क्या मटेरियल रहेगा, आपकी जो लैंडस्केपिंग है, isn't it? Everything we can have a complete detail. And Revit will also tell you in this entire building what size of doors we have used and in what number. जो पूरा आपका डोर्स का, विंडोज का स्केड्यूल है, वो सब आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। इवन आपने जो ब्रिक वर्क किया है इस बिल्डिंग पे, तो वो पूरा एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करके ब्रिक वर्क भी आपको दे देगा। एंड यहाँ पे आपने सिर्फ एक फ्लोर की प्लानिंग करी कि मेरा एक फ्लोर पे किस तरह का वर्क रहेगा, और वही सेम आपको अगर मल्टीपल फ्लोर्स पे दिखाना है, सिंगल क्लिक से आपका पूरा मल्टीपल फ्लोर्स का जो है वो प्लान और पूरा जो डिटेलिंग है पूरा वो तैयार हो जाएगा रेविट सॉफ्टवेयर से। दैट इज हाउ फास्ट इट वर्क्स एक्चुअली। And this is what, like, it will give you the complete details, like based on this complete building, now we want to have our further details। आपके जो मैंने बोला था डोर विंडोज का डिटेल है, इसके जो और आपको वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए, दैट यू कैन इजीली गेट ऑन द सिंगल क्लिक्स इटसेल्फ। दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एंड यू कैन मेक एनी चेंजेस ऑन एनी व्यूज। आपने अगर इस वाले व्यू में कुछ भी चेंज किया, कोई भी डोर रिसाइज किया, तो जितने भी रेस्पेक्ट में जो उसके सेक्शनल व्यूज हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज हैं, डिटेल ड्राइंग है, वो सब जगह आपको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। दैट इज व्हाट इज वी कॉल डिफरेंट फीचर्स, different properties of this Revit. Parametric modeling, bi-directional associativity, isn't it? All this is what, like, it is going to be used. And the best part is that इसका जो feature होता है massing, you can think of anything, any design you want to have। जैसे आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा, अटलांटिस, आज के टाइम पे जो बन रहे हैं डायनेमिक आर्किटेक्चर, यू थिंक ऑफ एनीथिंग। आपने शिप शिप की बिल्डिंग्स देखी हैं, जस्ट लुक एट दिस बिल्डिंग, यू कैन थिंक एंड यू कैन क्रिएट। एंड ऐसा नहीं कि खाली हमारा इमेजिनेशन है, विद ऑल वर्किंग ड्राइंग्स इट विल गिव यू कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जो आपको चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए, वो सारी डायमेंशंस के साथ आपको मिलेंगी। से द स्पाइरल शेप बिल्डिंग्स, everything we can do on this particular Revit software. That is what the beauty of this software. It also do this energy analysis। इसका क्या मतलब है? अब जैसे आप किस लोकेशन पे बिल्डिंग बना रहे हो, उस लोकेशन पे आपको based on the sun direction, based on that solar analysis, it will tell you the complete energy analysis कि आपका कितना कंजम्पशन होगा, वो पूरा आपका एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। दैट इज व्हाट इट डज इट। इवन आपका फाइनल व्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर, किस तरह का आपका लुक आएगा। इंटीरियर में ऑफ कोर्स आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर लाइब्रेरी में, सोफास की, किचन कैबिनेट्स की, आपके वॉशरूम्स की, ड्राइंग रूम्स की, तो वो लाइब्रेरीज यूज करके आप इंटीरियर पे प्लान कर सकते हो। अदरवाइज और जो हमारे बेटर इंटीरियर्स के लिए होता है, जो हम लोग के कस्टमाइज इंटीरियर्स है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो हम लोग 3ds Max यूज करते हैं। I'll just discuss that also later on. But Revit is basically going to give you the complete presentation of your exterior and interior with all that working drawings जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होती हैं। दैट इज हाउ इट दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर यू।
तो जितनी भी आपने बिल्डिंग्स देखी हैं, जो एयरपोर्ट्स के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, राइट, दे ऑल आर बीइंग डिजाइंड यूजिंग दिस रेविट सॉफ्टवेयर. एवरी इंडस्ट्री इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका लुक पे बात करी, आर्किटेक्चर पे. अब इसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो हमको इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स चाहिए होंगी, वो भी हमारे पास इसका रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर होता है मॉड्यूल, जिसपे आप पूरी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स निकालोगे. दैट विल डिस्कस लिटिल लेटर. राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द आर्किटेक्चर पार्ट. So this is how there are so many projects that we have used working on this Revit tool only. This is how you are going to make use of this particular software. So if I want to just give you the conclusion in nutshell about these two softwares, that is the AutoCAD and Revit. So mainly we know that AutoCAD is used for 2D drafting. It is going to help you to develop your layouts, plans, section views, isometric views, perspective views. So when you are going to explain this to the non-technical student, don't use these terminologies. They will not be able to understand. Just show them the drawings that I have just shown you. That this is how this is called as an isometric views. ये भी आप पढ़ेंगे जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे क्या होते हैं ये, क्योंकि वो लोग अभी नहीं समझेंगे. द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि उन लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. आप एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को जस्ट समझाएंगे उन्हीं की लैंग्वेज में, कि जस्ट आपको पता है कि जो भी आप नक्शे वगैरह पहले बनते थे आपने देखे होंगे, जिनके बेसिस पे काम होता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एलडीए से, तो वो सारी चीजें आप ऑटो कैड पे बनाएंगे. क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो आपको वही काम करना है कि आपके पास जो भी लैंड है उस पे आपको क्या बिल्डिंग बनानी है, कि आपको होटल बनाना है, कि आपको अपना एक विला बनाना है, कि आपको कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, आपको रोड्स बनानी है. तो कुछ भी आपका जो प्रोजेक्ट है तो उसके बेसिस पे आपको पूरे ड्राइंग्स पहले देनी होंगी. दैट इज व्हाट वी यूज, like we develop using this AutoCAD software. It is one of the most popular software. जो आप अगर नाम लोगे 2D ड्राइंग के लिए, 2D ड्राफ्टिंग के लिए, AutoCAD is the software that industry is using. By default, this is the most popular one. And Revit software is again the प्रोडक्ट ऑफ ऑटोडेस्क ओनली. दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी के ही हैं. ये 2D ड्राफ्टिंग के लिए बहुत बेटर है. Revit is for the 3D modeling as well as for all our architectural detailing. जहाँ पे आप 3D मॉडल पे तो वर्क कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको ये जो डिटेलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपको डिटेल्स चाहिए होते हैं, आपको आपके जो जैसे बात करें कि आपको उसके लिए जो आपको पूरी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए होती है काम करने के लिए, आपको उसके लिए पूरा डोर विंडोज का शेड्यूल चाहिए, वो सब आप निकाल सकते हो. ब्रिक वॉल्यूम्स आपको है, वो आपको मिल जाएगा कि कितना आपको ब्रिक्स लगेंगी. और जो ब्रिक्स वॉल्यूम निकालेगा तो वो आपका पूरा जो डोर विंडोज आपने फिट करे हैं उसका एरिया माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट कर रहा है. तो दैट इज व्हाट यू कैन इजीली गेट टू नो ऑल दोज डिटेल्स पार्ट ऑल्सो. इवन जब हम आगे बताएंगे तो वहां पे तो आपको पूरा इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी का, स्ट्रक्चर का, एक एक चीज की आपको डिटेल ड्राइंग्स मिलेगी. यहाँ पे आप उस तरह से रेविट सॉफ्टवेयर पे जब आप वर्क कर रहे हो तो उसकी 2D डिटेल ड्राइंग जो आप ऑटो कैड पे अलग अलग बनाते हैं, जैसे ऑटो कैड पे आप प्लान, सेक्शन, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, ये सब सेपरेट अलग अलग बनाएंगे.
और अगर आपने कुछ भी चेंजेस किसी भी व्यू में करे तो मैन्युअली आपको सारे व्यूज में जाकर के वो चेंजेस अपडेट करने पड़ते हैं। बट जब आप रेविट पे काम करोगे, आपने पूरा बिल्डिंग का मॉडल बनाया जैसे जो मैंने आपको दिखाया, उस बिल्डिंग के मॉडल के हिसाब से वो उसके पूरे जो सेक्शन ड्राइंग है सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। आपको नॉर्थ एलिवेशन देखना है वो सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। आपको साइड व्यू चाहिए सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। सारे व्यूज आपको सिंगल क्लिक्स पे मिल जाएंगे। और आपने कहीं भी कोई चेंजेस किए, वो एक जगह चेंज किया, सारे व्यूज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चेंज एट अ प्लेस वुड बी एवरीवेयर। दैट इज हाउ वी कॉल एज अ बिम। इंटर रिलेटेड होते हैं सारे जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको चाहिए होते हैं ड्राइंग्स के। दैट इज व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू वर्क ऑन। राइट, जैसे ये आपका रेविट का 3D मॉडल है। अब इस 3D मॉडल के बेस पे आपको जो भी ड्राइंग्स चाहिए, इसकी सेक्शनल व्यूज चाहिए, आपको इसके साइड व्यूज चाहिए, वो सारे व्यूज आपके ये सिंगल क्लिक्स पे निकाल के दे देगा। फ्लोर वाइज प्लान, फ्लोर वाइज डिटेल, आइसोमेट्रिक, सेक्शनल, पर्सपेक्टिव, एलिवेशंस, सारे व्यूज आपको रेविट सॉफ्टवेयर जो वो है सिंगल क्लिक्स पे दे देगा। और आपने इस अगर व्यू में कुछ चेंजेस किए किसी भी जगह, आपने कोई डोर्स हटा के शिफ्ट किया, कोई विंडो आपने हटाई, वो सारे जगह सारे डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कर देगा। That is how the software works. This is how the link is there. AutoCAD पे आपने जस्ट एक 2D प्लान लेआउट बना के सारा काम बाकी का आप रेविट पे कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एक अच्छे प्रोफाइल पे वर्क करना है, एक पूरा प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, क्योंकि आज के टाइम पे 3D के साथ, सो दे शुड गो फॉर बोथ ऑटोकैड एंड रेविट। अब कई बार लोग ये भी बोलेंगे कि अगर रेविट पे सब हो रहा है तो हम ऑटोकैड क्यों करें। ऑटोकैड इज वेरी बेसिक थिंग्स, मेनली फाउंडेशन है वो। आपको 2D ड्राइंग के जो कॉन्सेप्ट है, 2D ड्राइंग की जो समझ है, वो आपको ऑटोकैड से ही आएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो आपको एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स क्या होती हैं, वो ऑटोकैड से ही आप क्लियर होंगे। तो दैट इज बेसिकली द बेस फाउंडेशन। आपने पहले स्टार्ट करोगे एबीसीडी से, तब आप सेंटेंस पे आओगे। सिमिलरली पहले आप ऑटोकैड पे जब अपना पूरा समझ लोगे कॉन्सेप्ट्स, क्या प्लान्स होते हैं, क्या लेआउट्स होते हैं, क्या हमारे ये सब जो डायमेंशंस आपके होंगे वो क्या होंगे, डोर्स विंडोज के एनोटेशंस वगैरह, तो वो आपका पूरे कॉन्सेप्ट्स ऑटोकैड पे क्लियर होंगे। तो ऑटोकैड सीखने के बाद भी आप कहीं पे भी एज ए ड्राफ्टर वर्क कर सकते हो। जो ड्राफ्टमैन होते हैं जिनको सिर्फ ड्राइंग्स बनानी होती है 2D ड्राइंग्स, तो वो आप इजीली ऑटोकैड पे कर सकते हो। बट जहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे, जो अच्छे बड़े ग्रुप्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो रेविट पे ही पूरा अपना डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, तो वहां पे आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। राइट। सो इसके बाद आप किसी भी अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी आपके जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शंस का काम भी देख रहे हैं, उन सब जगह आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पे विल टॉक अबाउट दी 3ds मैक्स, वी रे, स्केचअप ऑल्सो, जो हम इंटीरियर्स में यूज करेंगे। अभी जस्ट हमने आर्किटेक्चर पार्ट कवर किया है जो आपको हेल्प करेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। राइट। थैंक यू।